अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तमिलनाडु से सियासी बयान में तमिलिसाई सुंदरराजन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सराहा है और उनके रिकॉर्ड टेन्योर को हिस्ट्रिक अचीवमेंट करार दिया। तमिलिसाई सुंदरराजन के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स में शामिल हो चुके हैं और उनका ये सफ़र हर पार्टी वर्कर्स के लिए इंस्पिरेशन है। ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में लीडरशिप अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है, जबकि कांग्रेस में सिर्फ एक ही फैमिली का डोमिनेंस रहा है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पीएम मोदी की पॉलिसीज़ के ज़रिए तमिलनाडु को लगभग 11 लाख करोड़ के बेनिफिट्स मिले हैं। So tomorrow it's going to be 4,400th day and we are 145th month and we are very happy that our Honorable Prime Minister, the longest serving Prime Minister and including his Chief Ministership, longest serving leader in the world in the office, either as Chief Minister and the Prime Minister. We are very happy, we are all living in this era. So we are seeing this achievement and our Honorable Prime Minister rose from the Karyakarta level. He has risen to that level. So it is a motivation for each and every Karyakarta because it is not like Congress, a dynasty. A person from a single family only can occupy such chair. But in Bharatiya Janata Party, Karyakarta has been risen to this level, is occupying the chair. So it is a motivation for each and every Karyakarta. And I salute for our Honorable Prime Minister because he has given schemes for 11 lakh crores to Tamil Nadu. And Tamil Nadu, more than 2 crore Jandan Yojana has been registered. And our Ujjwala scheme, 10 lakh women has been the beneficiary. And 70 plus this Ayushman. I really salute our Honorable Prime Minister. As a doctor, I have seen, because there is no any income ceiling for that. Even so we are very happy, and all the ports has been developed because of that infrastructure. The economy in Tamil Nadu is also moving forward. And with all these schemes to Tamil Nadu, we salute. And apart from that, yesterday, this our Swami Malai temple has been honored with the stamp and our Sengol has been installed in the parliament. So Tamil Nadu people really salute our Honorable Prime Minister, and we celebrate this 12th year and moving to 13th year and the 4,400th day. We are really celebrating it. CM Vijay inaugurates Singapore special techniques despite opposition claiming there is a law and order deterioration in the state. Yeah, because it is delayed. Actually, he promised even in the first day. Second, I want to mention here, more number of pilots are there in our country after our Honorable Prime Minister took the Prime Ministership. More number of women in army after Honorable Prime Minister took as a Prime Minister, and more number of parliament members and ministers holding very important portfolios. As for that also, because for Nari Shakti, supporting the Nari Shakti, I salute our Honorable Prime Minister. And Chief Minister Vijay has introduced the Singapore, and it should not be a ornamental force. It should be a very strong force to counter the sexual harassment and the atrocities against the women, because it is continuing. It's alarming that in spite of the 1 month of tenure, all the atrocities against women are continuing, and immediately that's just introducing a women force, that Singapore is not enough. They have to monitor it, and all the atrocities against women should be curtailed. साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से वेटरन फिल्म मेकर भरत राजा के हवाले से
चल रही नो मोर रिपोर्ट्स के बाद चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने उनके रेसिडेंस पर जाकर उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। सुपरस्टार रजनीकांत और वेटरन एक्टर कमल हसन ने भी वहां पहुंचकर इमोशनल अंदाज में अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट पेश की। रजनीकांत ने इस मौके पर कहा, भारती राजा विल लिव फॉरएवर इन द हार्ट ऑफ तमिल्स। फिल्म सर्कल्स में इस वक्त मिक्स्ड रिपोर्ट्स सर्कुलेट हो रही, जबकि फैंस ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। என்னுடைய 50 ஆண்டுகால நண்பர், அவருடைய திறமை பற்றி, அவருடைய சாதனை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நிறைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள், டைரக்டர்கள், நடிகைகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தி அவரை வாழ வைத்த, திரையுலகத்தை வாழ வைத்தவர் பாரதி ராஜா அவர்கள். அது மட்டும் இல்லை, டைரக்டர்ஸுக்காகட்டும், ப்ரொடியூசர்ஸுக்காகட்டும், சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் யாருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட முதல்ல வந்து குரல் கொடுத்து அவருக்காக போராடியவர் பாரதி ராஜா அவர்கள். இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனால் கூட அவருடைய படைப்புகள் மறக்க மாட்டாங்க. அவர் பேர் என்றென்றுக்கும் தமிழ் மக்கள் இதயத்தில் என்றென்றுக்கும் இருக்கும். தனிப்பட்ட முறையில் அவர் ஒரு குழந்தை மாதிரி உள்ள எல்லாருக்கும் அது வந்து ஓப்பனாக சொல்லிடுவார். பிடிச்சதே, இல்லைன்னா இல்லை. என்னை பற்றி அவர் நிறைய விமர்சனம் வச்சுருக்காரு. நான் முன்னே எனக்கு பிடிக்கும், ஆனால் அவன் நடிப்பு எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர்கிட்ட இருந்தாலே வந்து அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும், அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அவ்வளோ வந்து ஓப்பனாக அவ்வளோ நல்லா பேசுகிறவங்க யாருமே இருக்கவே மாட்டாங்க. அதனால தான் மறைஞ்ச புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள், டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள், நடிகர் தலைவர் சிவாஜி சார் அவர்கள் எல்லாருக்குமே அவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு நட்பு, அவ்வளோ அன்போடு இருந்தவர். அவர் உங்களோட இருக்கும்போதே வந்து நான் பார்க்கணும் சொன்னால், இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் சரியாயிடுவார், குணமாயிடுவார், அப்போ வாங்க, அப்போ சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. அது வந்து அவர் உதவியோடு இருக்கும்போது லாஸ்ட் டயத்தில் வந்து அவர் பார்க்காமலே போயிடுச்சு. அவர் என்றென்றும் என்னுடைய நிறைவில் என் கூடவே எல்லாரும் எப்போவும் இருப்பார். இன்னும் ஒரு ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும். அவர் குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். நன்றி. नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की टीम को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो फ्यूचर मून लैंडिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने में की रोल प्ले करेगी। इस मिशन में रैंडी ब्रेज़निक, फ्रैंक रूबियो, एंड्री डोगलास और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लुका परमिटानो शामिल हैं। नासा के मुताबिक ये एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्टली मून पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि अर्थ ऑर्बिट में रहकर एडवांस स्पेस ऑपरेशंस का टेस्ट करेंगे। क्रू अपने ओरियन कैप्सूल को सिम्युलेट मिशंस के दौरान 2 लोनार लैंडर्स के साथ डॉकिंग प्रोसीजर्स प्रैक्टिस करेगी, जो फ्यूचर लोनार मिशन के लिए क्रिटिकल स्टेप होगा। I am so grateful to be here with all of you as we discuss the Artemis program and announce the 4 astronauts who will undertake this very exciting mission. Making his first space flight, mission specialist Andre Douglas. Record-setting astronaut, mission specialist Colonel Frank Rubio. Now on to our pilot, ESA astronaut Luca Parmitano. Now to our commander, Marine Corps Colonel, Artemis III Commander, Randy Bresnik. Artemis III backup crew member, Bob Hines. One more round of applause for your Artemis III prime crew. मध्य प्रदेश से सियासी बयान में चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सराहा। मोहन यादव के मुताबिक पीएम मोदी की लीडरशिप में गवर्नेंस, डेवलपमेंट और वेलफेयर इनिशिएटिव्स को एक नई डायरेक्शन मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि इस टेन्योर ने इंडिया को पॉलिसी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फ्रेमवर्क दिया है, जो स्टेट और नेशनल लेवल पर विजिबल है। बीजेपी लीडर्स इस माइलस्टोन को गुड गवर्नेंस मॉडल के तौर पर हाईलाइट कर रहे।
देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। आजादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है, वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे। परमात्मा से कामना, बाबा महाकाल से 2029 में फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने और दक्षिण के बाकी बचे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित हो। यूनियन कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप टेन्योर को एक हिस्ट्रिक और इंस्पायरिंग माइलस्टोन करार दिया। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पीएम मोदी ने 4,399 दिनों ऑफ अनइंटरप्टेड सर्विस का रिकॉर्ड बनाया, जो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये ओकेशन इंडिया की डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। हम सबने देखा, नेहरू जी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे, बहुत बड़े एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे। तब देश का एक अलग मिजाज था, आजादी मिली ही थी अंग्रेजों से, और एक माहौल, विचार सब एक अलग था। आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो लोग प्रश्न उठाते हैं, चाहे भारत में या भारत से बाहर, उन सबको आज ये जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी, हमारे देश के नागरिकों का एक अच्छा फैसला करने की क्षमता, जो चेतना है, लोकतांत्रिक चेतना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक दिल्ली से आई सियासी खबर के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्राचीन हनुमान मंदिर में प्रार्थना करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। मीडिया से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में इंडिया ने डेवलपमेंट और गवर्नेंस के नए माइलस्टोन टच किए हैं। उनके मुताबिक पिछले 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और ग्लोबल स्टैंडिंग में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी गई है। आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। भारत में सामाजिक समरसता, लोगों के जीवन में
अच्छे उपहार, व्यापार और उद्योग जगत में तेजी और 12 वर्ष सुशासन के, विकास के और देश को अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने देखे हैं, भारत के सबसे लंबे अरसे तक चुने हुए प्रधानमंत्री बिना कोई ब्रेक के, ऐसे वो खिताब भी उन्होंने आज तोड़ा है। मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी लोकप्रियता और देश और दुनिया में बढ़ेगी। बिना एक दिन छुट्टी लिए 50 वर्ष जिन्होंने बेदाग देश की सेवा की हो, ऐसे व्यक्तित्व का मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु दे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो लंबे समय तक भारत का, विश्व का नेतृत्व करते रहें। भारत के लोगों के जीवन में इसी प्रकार से बदलाव और उज्जवल भविष्य के लिए सेवा भाव उनकी बनी रहे और वो आगे चल के देश को एक विश्व गुरु और विश्व ताकत के रूप में जो बनाने के मिशन में लगे हैं, उस मिशन में वो कामयाब हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको ढेर सारी आशीर्वाद ईश्वर के सदैव मिलते रहे। साउथ सिनेमा से एक वायरल रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि वेटरन फिल्म मेकर भारती राजा का इंतकाल हो गया। इसके बाद तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने चेन्नई में लीड डायरेक्टर के रेसिडेंस पर जाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया और स्टेट हॉनर्स अनाउंस किया। और इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े तमाम फिल्म पर्सनालिटीज़ की जानिब से काफ़ी गम का भी इजहार किया जा रहा। बेंगलुरु से सियासी खबर के मुताबिक कर्नाटका बीजेपी एमएलसी चलावाडी नारायण स्वामी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सराहा और उन्हें क्लीन पॉलिटिशियन करार दिया। टेंपल विजिट के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी पर किसी किस्म के एलिगेशन नहीं जो उनकी पॉलिटिकल इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी की 12 साल की लीडरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिनमें टेम्पल्स में स्पेशल पूजा भी शामिल है। Not only in Karnataka, all over India, the workers of the party and well-wishers of this party are going to the temples to have a puja in the name of Modi ji and BJP NDA government, because Modi ji is a longest serving Prime Minister of India in the democratically elected Prime Minister. But this is not the darkest days. These days are transparent days and a transparent world. Whereas Nehru or Indira Gandhi or Rajiv Gandhi, whoever become the Prime Ministers of India, serving almost the first time, second time also, those days are very darkest days, because people doesn't know what is what in politics. Now, every person know the politics, every person know the administration, so that serving a Prime Minister so long years in the transparent world, it is not a joke, it is not easy at all. Still, he is maintained because
his cleanness, very clean politician without any allegations against him. Transparent administration also given to the country. So everybody is happy with his administration, and people of this न्यू दिल्ली से सियासी खबर के मुताबिक नितिन नबी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनने पर दिल से मुबारकबाद दी। अपने बयान में नितिन नबी ने कहा है कि पीएम मोदी की लीडरशिप ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक यूनिक पहचान दी है। उनके मुताबिक मोदी गवर्नमेंट ने गवर्नेंस और डेवलपमेंट के जरिए मुल्क की सोच और डायरेक्शन को बदल दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हो। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व जहां एक और महिलाओं को, बहनों को भी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और मैं मानता हूं अब तो उसकी हिस्सेदारी की भी चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं मानता हूं समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है और मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। एयर इंडिया 171 क्रैश के बाद मुतासिरा फैमिलीज का दुख और गम अब भी कम नहीं हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ अपनों की यादें और ज़्यादा गहरी होती जा रही। लंदन में आकाश जो अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा था उस रोज़ को भूल नहीं पा रहा जब वो दोनों फ्लाइट अपडेट्स को लेकर कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे। लास्ट कॉल और लास्ट मैसेज के वो चंद मिनट्स अब उनकी ज़िंदगी का सबसे पेनफुल हिस्सा बन चुके हैं। आकाश रोज़ाना अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन हर दिन सिर्फ मायूसी लेकर आते हैं। गुजरात में एक और फैमिली की कहानी भी दिल हिला देने वाली है। हर्षित और पूजा पटेल असल में उस फ्लाइट पर ट्रैवल करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी जर्नी रीस्केड्यूल की थी, एक ऐसा फैसला जो अब उनके घर वालों के लिए ज़िंदगी भर का दर्द बन गया है। मेरी बात सुबह से वो निकले तब से लेके चल ही रही थी। अगले मतलब मेरी वाइफ से बात चलती ही रही थी। उस दिन 1:33 को लास्ट मैसेज आया था उनका कि टेक ऑफ होने वाला है, अब नेटवर्क नहीं आएगा, मैं पहुंच के कॉल करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप पहुंचो, मैं
तब तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और आ जाऊँगा। मैंने बोला शांति से आना, कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पे आपका इंतज़ार करूँगा। तो उस टाइम में एक 1:33 को मेरी बात हुई, फिर 1:39 को मेरी सिस्टर का कॉल आया कि भाई जो मेरी वाइफ जिस प्लेन में आ रही थी तो उस प्लेन में का मतलब क्रैश हो गया है। तो उस टाइम मुझे लगा कि 5-10 मिनट में तो रनवे पे होगा तो माइनर होता होगा, शायद नॉर्मली होगा जो होगा वो। सोचा तो नहीं था कि भाई इस तरह से पूरा इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तो थोड़ा टाइम 10-15 मिनट हुआ, फिर बाद में ग्रुप मैसेजेस वो सब में शुरू हो गया कि भाई ये प्लेन क्रैश हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसने हमको मेरी वाइफ की बॉडी 9 दिन के बाद मिली थी हमको 8 या 9 दिन हुए थे। तो उस टाइम पे तो हमने सिविल के अंदर सुबह के से लेके शाम तक वही इंक्वायरी करते रहो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बस वही चल रहा था उस टाइम पे तो। और दिमाग तो वैसे भी काम नहीं कर रहा था। आगे का तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है और सोचे ऐसे दिमाग की हालत भी नहीं है अभी तो, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जो हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जितनी बात हुई, जो हुआ, वो आज हर रोज दिमाग में आ रहा है। मतलब वो भूल नहीं पाता मैं। भाई थोड़ा लेट जाए, 10 दिन रह के जाइए, ऐसा था। और थोड़ा इधर उसका काम था तो वो काम निपटा के निकलते, ऐसा बोला। तो कौन सी मेरे को तो पता ही नहीं था कि उन लोगों ने 1 तारीख की टिकट वापस ली है, लेके ही आया था आने जाने की। फिर यहाँ के उसने कैंसिल कराई थी, 12 तारीख को ली थी। पासपोर्ट निकाला, तत्काल में निकाला, 3 दिन में पासपोर्ट मेरा आ गया था। तो पूजा बोली कि अभी पापा 1-2 महीना बाद में मेरे पास ही आ जाने का है तुमको। सब तैयारी करके गई थी। अभी पासपोर्ट भी ऐसे ही ऐसा पड़ा है। मेरा संबंध तो बाप और दीकरी का जैसा था। बोलता हूँ ना, वो आई तो उसकी मम्मी की मेरे को याद नहीं आती थी जब से मेरे घर में आई। जब से पूजा मेरे घर में आई ना, तब से उसकी मम्मी को मैंने एक दिन याद नहीं किया है, कहीं याद भी नहीं आई है। इतना वो रखती थी मेरे को, कि उसकी कमी मेरे को नहीं हुई। ऐसा कोई किसी को ना मिले ऐसा वक्त जो मैंने देखा, किसी को ना। तो છોકરાને હું બચાવવા ગઈ પણ છોકરો બચાઈ ના શકી હું તો બધી પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ તો હું દોડતી હતી છોકરાને બચાવવા માટે પણ બચાઈ ના શકી। પછી બહુ આગ આવી તો હું દોડીને પાછી પડી, વચ્ચે ગાડી આવી ગઈ, વચ્ચે ગાડી આવી મને હું એકદમ પાછી પડી ગઈ। બધી પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ તો મને પબ્લિક વાળા બધા આ સાઈડ આવી જો કે તમે તો રાત દિવસ એના જ વિચાર આવે છે સાહેબ। મને ઘરમાં બી નથી રહેવાતું મારા છોકરા વગર। 5 મિનિટ હું છેટો નતો મુકતી મારા છોકરાને। મારા છોકરા વગર મને નથી ગમતું। મને રાત્રે બી ઊંઘ નથી આવતી। હું ઘરમાંથી બહાર નીકળી જાઉં છું કેમ કે હું 20-22 વર્ષથી હું ચાની કેટલી ચલાતી હતી અને મારા છોકરા વગર નહીં ચાલતું મને। और मेरे को 20 रुपये का भाड़ा मिला साहिबाग राजस्थान हॉस्पिटल का। मैंने बोला मैं भाड़ा उतार कर आता हूँ, तब तक तेरी मम्मी को तू टिफिन खिला के आ जा। बोल के अच्छा पापा, और टिफिन लेकर आया। और मेरी बीबी यहाँ पे चाय की, सीता बहन चाय की किटली चला रही थी, उसने खाया और खा के लड़का सामने साइड में सो गया थोड़ा। वैसे ही प्लेन आया ना, वैसे ही ऐसा टूटा ना वहाँ से होके यहाँ पे भटका। जो पड़का था ना वो लड़के के ऊपर ऐसे गिर गया। जैसे लड़के के ऊपर गिरा तो लड़के को उठने का कोई चांस ही नहीं मिला। और जैसे स्पॉट हुआ, स्पॉट इतना हुआ कि सब धुआं निकलने लगा, लड़के को उठने का मौका ही नहीं मिला। सीता बहन वहाँ पे मेरी गिरदी बचाने गई, लेकिन उसके ऊपर जो पेट्रोल का जो फॉक्स है ना, तो उसकी जाने की हिम्मत ही नहीं है, पूरा वो भी जल गई, पूरा ही।
न्यू दिल्ली से सियासी मैदान में एक नया बयान सामने आया है जिसमें कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने एनडीए गवर्नमेंट के 12 साल की परफॉर्मेंस पर सख्त तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि इस दौरे हुकूमत में बेरोज़गारी, किसानों के मसाइल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की कमज़ोरी बढ़ती गई है। कांग्रेस एमपी ने यह भी कहा कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही और फार्मर्स को उनके हुकूक से महरूम रखा गया। पॉलिटिकल सर्कल्स में इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई जहां सपोर्टर्स और क्रिटिक्स अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस बयान पर अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस सामने नहीं आया। आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। देश के तमाम तर संसाधनों के ऊपर उन लोग कुछ प्रिय मित्रों का अधिकार हो गया, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो खदानें हों, चाहे वो रेलवे स्टेशन हों, चाहे वो बंदरगाह हों, वो तमाम चीज़ें बांटने का काम कर दिया। देश की सबसे बड़ी कंपनीज को, जो नॉर्थन कंपनीज थी, उनका हाल पिछले 12 साल के अंदर देख लियो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। LIC के अंदर लोगों का, गरीब लोगों का पैसा था, उसका पैसा किस तरह से शेयर मार्केट में उन कंपनियों के पास लगाया गया जो सरकार की चेती थी और वो पैसा डूबने का काम हुआ। ये काम ऐसे लिखे गए हैं जो इतिहास में लिखे गए। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या इन 12 साल के अंदर हुई और जो लोकतंत्र को दबाने का काम इन 12 साल के अंदर हो रहा है वो इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ। जो सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था, जो सपना महात्मा गांधी था, उस सपने को चकनाचूर इस 12 साल के अंदर किया गया। ये 12 साल देश बेहाल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।